कैट प्रिपरेशन में वर्बल सेक्शन के लिए मैं कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताऊंगा जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन के टाइम करते हैं एंड काफ़ी टाइम भी उनका चला जाता है। ये मिस्टेक्स मैंने भी किए थे ड्यूरिंग वर्बल प्रिपरेशन। तो क्वांट एंड एलआरडीआई तो मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो वो मिस्टेक्स रियलाइज करना काफ़ी ईजी था मेरे लिए उन सेक्शंस में। बट वर्बल में मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट किया था ऑन सर्टेन थिंग्स विच डिड नॉट गिव एनी रिटर्न। तो मैं वही शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। एंड काफ़ी सारे मिथ्स तो इतने प्रेवलेंट है कि सम ऑफ द पॉइंट्स विल शॉक यू एज वेल, स्पेशली द फर्स्ट टू पॉइंट्स, क्योंकि काफ़ी सारे कैट टॉपर्स भी वो रेकमेंड करते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दोज आर लाइक एडिशनल थिंग्स, नॉट द प्री रिक्विजिट्स। सो काफ़ी सारे मिथ्स भी क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 मिस्टेक्स you should avoid in your verbal preparation. And if you're new to the channel and you do not know me, I'm Anand Chajar. I got 99.91 percentile in CAT 2018 and I'm an IIM Ahmedabad graduate batch of 2021. And I keep making such videos. One of the videos I made was to avoid the mistakes during quant preparation before this, and I'll soon come up with the LRDI video as well after this. So make sure you subscribe to the channel before we go ahead. So the first advice is do not read a lot of books or avoid reading books for CAT preparation. So this might be a bit difficult to listen because a lot of people do recommend reading books for verbal preparation. But the idea is, see, if you enjoy reading books, then it's great. But if you're specifically doing it only for CAT preparation, then it's definitely a mistake. The reason being, if you're reading one particular book, you are getting accustomed to one particular storyline, one particular tone of the author, and one particular subject, which is not how you should prepare for verbal. Rather, with the time that you will spend on reading that one particular book, you can probably read 20 different articles which will expose you to different styles of writing and different tones and also different subjects, which is more useful for verbal preparation. So if you are someone who does not enjoy reading books, then obviously you will procrastinate a lot as well, and that is also harmful. So make sure if you do not enjoy reading books, then go for articles, go for editorials in newspapers. Those short articles are much more useful because the RCs are also of that sort. And if you are someone who reads books regularly, then it's completely fine. You can keep doing that. It helps in CAT preparation, but the return that you get by reading a book versus reading an article is very different, especially the time that you have to commit for each. And books specifically also help in increasing your knowledge. So what I'm specifically talking about is only for CAT preparation. Books are not useful, but obviously I also read a lot of books. Like after CAT preparation as well, I kept reading a lot of books, and that is for a very different reason. Specifically for CAT preparation, you should follow the advice that I have given. Second advice is do not go deep into grammar or vocabulary. A lot of people do suggest reading certain books, especially those word power made easy kind of books, which is very much focused on vocabulary and grammar. This is not at all required. अगर आपका ग्रामर एंड वोकैबुलरी डिसेंट भी है, आई कैन टेल यू इवन इफ शशि थरूर कम्स फॉर द वर्बल पेपर, इट्स नॉट नेसेसरी दैट ही विल स्कोर ग्रेट इन द कैट पेपर. कैट में वर्बल पेपर जो है वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग देखता है, क्रिटिकल रीजनिंग देखता है. उसको कोई मतलब नहीं है आपके वोकैबुलरी से, आपके ग्रामर से. अगर आपका ग्रामर इधर उधर भी है, इट ऑल्सो वर्क्स. वोकैबुलरी में जो इंपॉर्टेंट है वो है, आप अगर कोई आरसी पढ़ते हो, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस. अगर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. क्या आप वो फुल सेंटेंस समझ पा रहे हो? अगर आपने वो सेंटेंस समझ लिया, इट इज़ मोर देन इनफ. कुछ ऐसे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, मीनिंग पूछा जाता है, बट दोज आर वेरी वेरी रेयर एज वेल. दैट टू लाइक 1 or 2 क्वेश्चंस विल कम. कैट में ऐसे डायरेक्ट वोकैबुलरी क्वेश्चंस नहीं आते हैं. एंड इफ यू आर गुड विद क्रिटिकल थिंकिंग, इफ यू आर गुड विद क्रिटिकल रीजनिंग, दैट इज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग आरसीज एंड फॉर एनी वर्बल क्वेश्चन. वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है. एंड जो टाइम चला जाता है वोकैबुलरी पढ़ने में, ग्रामर करने में, दैट इज एक्सटेंसिव. अगर आपका नॉलेज बहुत ही बेसिक है, देन आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, सो दैट यू कम टू अ लाइक अ बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज, एटलीस्ट फाउंडेशन क्लियर हो जाए. उसके बाद बहुत ज़्यादा पढ़ना डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नहीं है. सो फर्स्ट दो मिस्टेक थे प्रेपरेशन रिलेटेड. अगर आप उन दोनों को अवॉइड करते हो तो आप बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन टाइम सेव करोगे. मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया था इस पर, एंड मैं बहुत सारे ऐसे बुक्स पढ़ता था जिसमें मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था. तो मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस दे देता हूँ कि इन दोनों को अगर आप अवॉइड करते हो तो डेफिनेटली काफ़ी टाइम सेव होने वाला है. बट इसके बाद एक एग्जाम रिलेटेड मिस्टेक पे आते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग मिस्टेक पे आते हैं. एंड दैट इज अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे ट्राई टू सॉल्व वर्बल पेपर, दे ट्राई टू सिलेक्ट द राइट आंसर. जस्ट लाइक क्वांट्स एंड एलआरडीआई, उनको लगता है कि मुझे राइट आंसर ढूंढना है. बट दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच फॉर वर्बल. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिलेक्ट
एंड फाइंड आउट द रॉन्ग ऑप्शंस। राइट आंसर चूज करना बहुत डिफिकल्ट है वर्बल में, आपकी एक्यूरेसी कभी इंप्रूव नहीं होगी। वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड ऑल द 4 ऑप्शंस, अंडरस्टैंड वाई द डिफरेंट ऑप्शंस आर रॉन्ग एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई दैट पर्टिकुलर ऑप्शन इज राइट। अगर आप रॉन्ग आंसर्स पिकअप करना सीख लो वर्बल पेपर में, इट विल बी मच मोर ईजियर एंड योर एक्यूरेसी विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। सो आप जब भी वर्बल का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आरसी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मेक श्योर कि आप राइट आंसर का रीजन तो पढ़ोगे ही, बट उसके साथ साथ आप रॉन्ग आंसर्स का भी रीजन पढ़ो कि वो रॉन्ग है क्यों, बिकॉज दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द पैटर्न। उसके बाद आप पैटर्न नोट डाउन करो कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों बार बार रॉन्ग हो रहा है। जैसे मैंने अपने प्रेपरेशन के टाइम किया था, मैंने ऐसे एनालाइज करके 6 स्ट्रैटेजीज बनाई थी कि आरसी को कैसे सॉल्व करना चाहिए, एंड उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन वॉच दैट। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजीज में जो है वो ये सिखाता है कि रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट करना आपको सिखाएगा, राइट आंसर सिलेक्ट करना कोई भी ऑप्शन, कोई भी स्ट्रैटेजी आपको नहीं सिखाएगा, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने जब भी कोई पैटर्न पिकअप किया था, जब भी अपनी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, हमेशा रॉन्ग आंसर्स को पिकअप करने में फोकस किया था, बिकॉज दैट इज ईजियर इन वर्बल पेपर। उसके बाद नेक्स्ट एडवाइस है फोकस ऑन आरसी एंड स्पेंड 90% ऑफ द टाइम ऑन आरसीज। देखो वर्बल सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आरसी होता है, उसके बाद पैरा समरी होता है, पैरा जंबल्स होता है, एंड पीपल थिंक दैट्स अब सब में मैं इक्वल टाइम दूंगा बिकॉज 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक्स में टाइम देना है। बट अगर आप कैट का पेपर देखो, पहले तो आरसी का वेटेज बहुत ज़्यादा है, एंड उसके बाद अगर आप बस आरसीज प्रैक्टिस अच्छे से कर लो ना, दैट मीन्स आपका क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग इतना ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा कि उसके बाद पैरा समरी सॉल्व करना एंड इवन पैरा जंबल सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो 90% आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आरसीज से होने चाहिए, एंड 10% शुड बी फ्रॉम अदर टॉपिक्स लाइक पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड एवरीथिंग। आप मैं बार बार और ज़्यादा स्ट्रेस इस पर नहीं दे सकता कि आप बस आरसी पे भी फोकस करते हो अगर, एंड बाकी जो क्वेश्चन है वो बस मॉक्स में प्रैक्टिस कर लेते हो, देन ऑल्सो you can score a 99 percentile. And last and the final tip for you is do not focus a lot on verbal theory. And the idea behind this is very simple, that अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है आपका आरसी में, तो बहुत लोग कैंडिडेट सोचते हैं कि मैं पहले थ्योरी पढ़ लेता हूँ बिकॉज वहाँ से कुछ सीखने मिलेगा, उसके बाद एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी बुक्स से पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बहुत सारा थ्योरी वहाँ लिखा रहेगा, एंड आप उस थ्योरी को पढ़ते जाओगे, फिर आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने आओगे, देन ऑल्सो द एक्यूरेसी विल एब्सोल्युटली बी द सेम। इम्प्रूवमेंट बस एक चीज़ से हो सकती है, एंड दैट इज़ प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। ज़्यादा से ज़्यादा आरसीज प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आरसी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, तभी आपकी इंप्रूवमेंट हो सकती है एक्यूरेसी। बट अगर आप थ्योरी में जाते हो बार बार, देन इट विल डेफिनेटली नॉट हेल्प यू। आप एक बेसिक अगेन थ्योरी पढ़ लो, दैट शुड लाइक मैक्सिमम मान लो 7 दिन में आपका आरसी का फुल थ्योरी कवर हो सकता है, एंड बाकी टॉपिक्स के थ्योरी भी मैक्सिमम 7 डेज में कवर हो सकते हैं। उसके बाद आप जो मेनली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हो उसकी रीजनिंग ज़्यादा पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग वैसे ही इंप्रूव होती है, थ्योरी पढ़ने से नहीं होगी। सो जाते जाते एक बोनस टिप दे देता हूँ कि वर्बल प्रेपरेशन में स्पेशली आप जो मॉक्स दोगे तो आपकी स्कोर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। क्वांट एंड एलआरडीआई में काइंड ऑफ स्कोर आपकी स्टेबलाइज होती रहती है, बट वर्बल में ये फ्लक्चुएशन ऑन रहेगा। द गुड वे टू लुक एट इट इज आप प्रीवियस 5 मॉक्स का एवरेज देखो कि क्या वो इंप्रूव हो रही है। आप एवरी मॉक अगर वर्बल पेपर को देखते रहोगे कि क्या इंप्रूव हुआ, ये कम कैसे गया लास्ट मॉक से, क्या मैं प्रेपरेशन सही नहीं कर रहा हूँ, देन दैट इज नॉट अ गुड वे। सो आई होप आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। एंड अगर आपको ये भी जानना है कि कौन प्रिपरेशन में ऐसे कौन से मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने चाहिए, देन वो वीडियो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैं आपसे वहाँ मिलूंगा। एंड एलआरडीआई वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाला है, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल।